Good morning, student of the BSc first year classes. I will today start the new topic. New day, the new topic. The new topic is start to the cell cycle, which can say we are study now to the cell division. So before the study of the cell division, we know how the processes which are going for the cell division, or the what's happening, what will happen for that to the cell division, cell divided into two cells. What is the processes, what is the material or the synthesis is going on, so that today's topic is very important. After the studied up to the cell types and to their cytoplasm, plasma membrane and their numbers of the organelles. So now reach to the how many cells which are formed, which are mentioned that to the cell is arises from to the pre-existing cell, which means that to the cellula, e-cellula, it means cell is arise into the new cell, and cell is divided into the new cell. But how is the procedure which form to the base of to the cell division, how to the materials, how many numbers of the events which are found into the for the cell division, so that the sequentially events which are found for that to the cell division or the formation of the base are the foundations which a fully matured cell which are grown and that is the participate into the cell division to form to the two daughter cells, so that we will know that how the process before the cell division is a very important. What is the name? This is the name is सेल साइकिल. आज के टॉपिक में जो बीएससी फर्स्ट ईयर क्लासेस के जो सेल से रिलेटेड टॉपिक चल रहे हैं उसका ऑर्गेनेल्स कंप्लीट हुआ. अब हम आज नए टॉपिक के साथ में सेल डिवीजन को आगे पढ़ेंगे. लेकिन सेल डिवीजन से पहले से पढ़ने पड़े उसके बेस के लिए क्या सेल डिवीजन को होने के लिए कौन कौन से मटेरियल या किस घटनाओं, किस इवेंट्स, किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी घटनाएं होती हैं, क्या हैपनिंग होती है, क्या कौन से इवेंट वहाँ पे होते हैं या उस सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी है, वो बेसिक तैयार करते हैं. तो हम उन सारी बातों को जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि क्या ऐसा प्रोसेस होता है कि जो कि पूरे सेल डिवीज़न को करवाते हैं या फिर वो सेल डिवीजन के लिए कमिट हो जाती है. जो सेल होती है, जैसा कि मैंने पहले भी लेक्चर में बताया है कि सेल जो अराइज होते हैं, जो कि हमारी सेल थियरी कहती है कि सेल अराइज फ्रॉम टू द प्री एग्जिस्टिंग सेल. सेल जितने भी सेल बनते हैं वो अपने पूर्ववर्ती सेल से बनते हैं, तो अपने जो एंसेंट सेल होती हैं, एंसेस्टर होते हैं, उनसे बनते हैं. इसका मतलब है कि जो सेल जो है कुछ ऐसे प्रोसेसेस में जाएगा, कुछ ऐसे इवेंट्स में जाएगा, कुछ ऐसे सिंथेसिस करेगा जो कि डिवाइड होने के बाद उसी नंबर में, उसी संख्या में, सेम मैनर में, सेम न्यूक्लियस के साथ में, सेम न्यूक्लियस के नंबर में हम जो है उसको जानेंगे. तो नाउ गो टू द टुडेज टॉपिक इज द सेल साइकिल. सेल की साइकिलिंग कैसे होती है, साइकिल क्या होता है, जो कि सेल डिवीजन को भी रिप्रेजेंट करेगा. मतलब सेल साइकिल के अंतर्गत ही सेल डिवीजन की भी प्रक्रिया हो जाएगी. लेकिन सेल डिवीजन को जानने से पहले हमें सेल साइकिल को जानना बहुत जरूरी है. दिस इज अ वेरी essential and important for that to the know about to the cell division. So that is how the events or the sequence or the procedures
that happen before the cell division, so that this is the called to the cell cycle. Cell cycle is the processes, is the cyclic processes, is the sequentially processes that have to the numbers of the events, numbers of the changes, and to the happenings for to the make to the base for that to the cell is dividing to two cells along with the same amount, same number, or the same materials of the cell. तो कहने का मतलब होता है कि एक बेस तैयार करता है, एक सेल जो साइकिल है वो एक सेक्वेंसली प्रोसेसेस होता है जिसमें बहुत सारे इवेंट्स होती हैं, घटनाएं होती हैं, हैपनिंग्स होती हैं, जो कि एक बेस तैयार करती हैं, एक फाउंडेशन तैयार करती हैं, जिनके आधार पे सेल जो है वो कमिट हो जाती है, सेल डिवीजन में जाती है और दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि वो सेल जो डिवाइड होगी वो उसी नंबर में, उसी अमाउंट में जो कि उसके प्रीवियस सेल ने, उसके पेरेंटल सेल ने कंटेन किया है, कॉन्सिस्ट किया है, वो उसी नंबर में लेके जाती है। तो ये जो सेम नंबर, सेम हैपनिंग, जो मटेरियल जो जा रहे हैं वो किसके आधार पे जाते हैं, कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, उसको हम जानते हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि सेल डिवीजन आपने लोअर क्लासेस से हायर क्लासेस में पढ़ते चले आए होंगे। सेल डिवीजन जो होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस को होने के लिए कुछ घटनाओं की जरूरत पड़ती है, कुछ हैपनिंग्स होती हैं, कुछ प्रक्रियाएं उसके पहले होती हैं जो कि एक सेल के डिवीजन के लिए बहुत ही इसेंशियल होती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, हमने कहा अगर सामान्य शब्दों में सेल साइकिल को समझा जाए तो ये ऐसे होगा, कंप्लीशन ऑफ द वन साइकिल टू नेक्स्ट। एक साइकिल के खत्म होने से हम थोड़ा सा रफली आपको बताते हैं, एक डायग्राम बताते हैं। एक देखिए ये साइकिल है, एक सर्किल मैंने बनाया और इस सर्किल के माध्यम से हमने बताया कि ये देखिए यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया, ये इंडिकेट किया यम। तो ये यहाँ पे कंप्लीट, ये जो इंडिकेट कर रहा है ये कंप्लीशन को कर रहा है, ये कंप्लीट हो रही है यहाँ पे साइकिल, ठीक है। और उसके बाद ये जो पूरे प्रोसेसेस चलते हैं, ये देखिए ये और फिर यहाँ तक, तो कंप्लीशन अप टू द वन साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट हो गई और फिर दूसरी जो अगली साइकिल है, नेक्स्ट साइकिल, वो कंप्लीट हो जाए। तो इसके ड्यूरेशन में जितनी घटनाएं, जितने इवेंट्स, जितनी प्रक्रियाएं चल रही हैं उसको क्या बोला जाता है, सेल साइकिल बोला जाता है। सेल साइकिल हम बोलते हैं। हमने क्या बताया, एक सामान्य लिटरली हम जो जैसे हम कहते हैं कि जनरली वर्ड्स में वी कैन से दैट अबाउट इन द जनरल वर्ड द completion of the one cycle to the next that is called to the cell cycle, which are had to the numbers of the events or the happenings for to the prepare the base or the foundation of the cell डिवीजन। तो सेल के डिवीजन के लिए वो प्रिपरेशन करते हैं, साइकिल करते हैं। तो एक साइक्लिक सीक्वेंस में, एक साइक्लिक प्रोसेसेस में, एक वन बाय वन सीक्वेंस में ये प्रोसेसेस होती हैं, साइकिल चलती हैं और जिसके आधार पे वो सेल साइकिल को रिप्रेजेंट किया जाता है। सेल की साइकिल मतलब अब देखिए आपको साइकिल बोला जा रहा है, किसकी साइकिल, सेल की। सेल के लिए जो साइकिल है, मतलब ये अगर साइकिल बोला जाए तो साइक्लिक प्रोसेस होगा, मतलब एक बार खत्म होगा फिर दूसरी बार स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जहां से खत्म होगा वो फिर से आगे स्टार्ट भी होगा या फिर कुछ टाइम के लिए रुकेगा। तो कुछ ऐसे इवेंट्स हमेशा चलते रहते हैं। तो उसी सीरीज को, उसी क्रम को, उसी इवेंट्स को यहाँ पे सेल साइकिल के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। तो हम आप यहाँ पे समझते हैं, देखिए कुछ वर्ड्स हैं, मैंने कहा कि द नंबर्स ऑफ द इवेंट्स विच आर फॉलो इन टू द वन साइकिल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वन टू नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड टू द सेल साइकिल। तो सेल साइकिल जो है यहाँ पे द सेल साइकिल और सेल डिवीजन साइकिल, सेल के डिवीजन के लिए साइकिल होना या सेल साइकिल, सेल के साइकिल होना।
तो सेल डिवाइड हो रही है, सेल कमिट हो रही है डिवीजन में, कैसे होगा हम हाउ इज द प्रोसेस, हाउ विल प्रोसेस, हाउ इज द पॉसिबिलिटीज विच आर अकर दैट टू द सेल इज विच कमिटेड फॉर दैट टू द सेल डिवीजन, सो दैट टू द नाउ लेट अस सी एंड जस्ट कंसिडर्ड अबाउट टू द व्हाट इज द definitions and to the procedures and functions of the cell cycle और सेल डिवीजन साइकिल, आप दोनों बोल सकते हैं, सेल के डिवीजन के लिए साइकिल या फिर सेल की साइकिल। सेल की साइकिल को बोलेंगे तो सेल के अंतर्गत जितने भी हैपनिंग्स हो रही हैं वो आएगा, सेल डिवीजन के लिए बोलेंगे तो सेल के डिवीजन के लिए जो प्रिपरेशन या फिर इवेंट्स होते हैं वो उसको होंगे। तो दोनों का जो इंडिकेशन है वो एक ही जैसा, एक ही तरफ कर रहा है, तो हम कह रहे हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन साइकिल is the series of events that take place in the cell that cause it to be divided into two daughter cells। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ पे, the cell cycle or the cell division cycle is the series of events। ये क्या है? एक सीरीज है, मतलब वन बाई वन करके एक छोटे छोटे इवेंट्स में, एक छोटे छोटे उसकी घटनाएं होती हैं एक एक स्टेप में, तो इसीलिए उसको सीरीज बोला गया। उसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेसेस होता है, जैसे कह सकते हैं कि सीक्वेंस में सेक्वेंसली द हैपनिंग्स, एक हैपनिंग होती है तो इसी को बोला है सीरीज ऑफ इवेंट्स। घटनाओं की जो एक सीरीज है वो किसके अंतर्गत होती है? दैट टेक प्लेस, होती किसमें है? इन अ सेल, सेल के अंदर जो है एक घटनाओं की एक सीरीज है, किसके लिए इंडिकेट कर रही है? सेल साइकिल के लिए। क्या करती है? अब उससे होगा क्या? व्हाट will happen, what will the result after that to the numbers of the events, number of the happening, number of the procedures which are go now in the cell, तो उससे cause it to be divide into two daughter cell, वो दो सेल में उसको डिवाइड करने के लिए होती हैं। तो कुल आपको यहाँ पे ब्रीफ में अगर हम इसका पूरा सारा वो बताएं, कॉन्सिक्वेंटली इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है, कंक्लूजन होता है, वो ये निकल के आता है कि सेल को डिवाइड, दो सेल में डिवाइड करने के लिए सेल के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के सेक्वेंसली या सीरीज में जो घटनाएं सेल के अंदर हो रही है उसी को सेल साइकिल बोलते हैं। किसके लिए? फॉर द कमिटमेंट ऑफ टू द डिवाइडेशन ऑफ द टू डॉटर सेल, दैट इज द सीरीज ऑफ द इवेंट, सीरीज ऑफ द हैपनिंग्स इनसाइड द सेल, दैट इज रिफर्ड टू द सेल साइकिल। सेल के डिवीजन के लिए, सेल के डिवाइडेशन के लिए जो महत्वपूर्ण लगातार क्रम में जो घटनाएं चलती रहती हैं उसी को सेल साइकिल बोलते हैं। हमेशा ध्यान दीजिए, साइकिल की बात हो रही है तो निश्चित रूप से एक स्टेप पूरा होकर दूसरे स्टेप में जाएगा, एक साइकिल पूरी होकर दूसरे स्टेप में पूरा होगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपको कंसर्न कर दिया कि अगर आप सामान्यतः शब्द में बोले कंप्लीशन ऑफ द वन सेल टू कंप्लीशन ऑफ द वन सेल साइकिल टू द कंप्लीशन ऑफ द नेक्स्ट, वन सेल, एक सेल के डिवीजन होने से अगले सेल के डिवीजन होने तक की जो पूरी घटनाएं हैं वो सेल साइकिल के अंतर्गत आती हैं, उसी को सेल साइकिल बोलते हैं। तो उसी को यहाँ पे इस डिफिनीशन के माध्यम से, इस सेंटेंसेस के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया। द सेल साइकिल और सेल डिवीजन साइकिल इज द सीरीज ऑफ द इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द सेल दैट cause it to be divided into two daughter cells। सेल के अंतर्गत होने वाली जो सीरीज ऑफ द इवेंट्स हैं वो सेल को डिवाइड करती हैं, उसी को सेल साइकिल बोला जाता है। एक पूरी तरीके से सेल साइक्लिक प्रोसेस है। कुछ चीज़ों को और समझते हैं। द सेल साइकिल इज अ 4 स्टेज प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ गैप फर्स्ट G1 सिंथेसिस, गैप 2 G2 एंड माइटोसिस और यम फेज। तो इसमें जो द साइक्लिक प्रोसेसेस are the series of the events which are found into the cell for that to the division, particularly we can say that into the cyclic processes which are had to the series of the events in the cyclic process, there are
फोर्थ टाइप्स ऑफ द स्टेजेस, 4 प्रकार के स्टेज पाए जाते हैं। जो पूरा घटना हो रहा है, जिस घटना हम बार बार बोल रहे हैं, वो जो घटना है वो 4 इवेंट्स के रूप में प्रदर्शित होता है। 4 इवेंट्स उसमें होते हैं और 4 अलग अलग इवेंट्स के माध्यम से ही हम जो है इसको समझते हैं। तो आप देखें यहाँ पे क्या लिखा है, द सेल साइकिल इज अ 4 सेल स्टेज। 4 स्टेज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। स्टेज प्रोसेसेस, 4 स्टेज का प्रोसेसेस है, मतलब जो इवेंट्स घटनाएं होती हैं वो एक मैकेनिज्म के थ्रू होती हैं, इसलिए यहाँ पे 4 स्टेज प्रोसेसेस कॉन्सिस्टिंग, जो कि कॉन्सिस्ट करती है पर्टिकुलर नेम के माध्यम से। तो उसमें जो 4 स्टेजेस हैं वो कॉन्सिस्ट करती हैं, देखिए क्या, गैप फर्स्ट को शॉर्ट में G1 बोलते हैं, सिंथेसिस यहाँ पे S बोलते हैं, S फेज, गैप 2 और द G2 फेज बोलते हैं, और M फेज बोलते हैं, वो होता है माइटोसिस फेज। तो आप नंबर ऑफ द जो सीरीज बोला जा रहा है या सीरीज ऑफ द इवेंट्स बोला जा रहा है, वो 4 में उसको डिवाइड कर दिया गया, 4 भाग में अलग अलग, 4 फेज में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। फेज जो कि वो इस पे पर्टिकुलर हैपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और पर्टिकुलर हैपनिंग्स जो होती हैं उसी के आधार पर उसका नाम दिया गया है। हम आगे आपको चर्चा करेंगे। तो ये 4 भाग में डिवाइड किया गया। कुछ चीजों को और देखते हैं। एन एक्टिव यूकैरियोट सेल विल अंडरगो एज इट ग्रोज एंड डिवाइड। जो एक्टिव यूकैरियोटिक सेल होती हैं, पर्टिकुलरली प्रोकैरियोट सेल में माइटोसिस और मियोसिस नहीं होता है, वहाँ पे वो दूसरे ढंग से एमाइटोसिस की प्रक्रिया होती है, वो दूसरे प्रोसीजर है। हम कभी लेक्चर में बताएंगे आपको जब डिविजन्स की बात आएगी। An active eukaryotic cell will undergo as it grows and divides. जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं एक्टिवली रूप से वो अंडरगो सेल डिवीजन में जाती हैं, ग्रो करती हैं और डिवाइड्स हो जाती हैं। पर्टिकुलरली यूकैरियोटिक सेल, प्लांट और एनिमल सेल which are mentioned in here to the eukaryotic cell will adopt to the first of all which are going into the growing period, and then after it divides. ये डिवाइड हो जाती हैं। कैसे डिवाइड होंगी? हाउ विल द प्रोसीजर विच मेक टू द easier path for that to the cell is committed in for that to the 2 daughter cells. So now after the completing the cycle, the cell either start the processes again G1 or exist the cycle through G0। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि ये साइक्लिक प्रोसेस है, एक इवेंट खत्म होगा तो दूसरा इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा इवेंट खत्म होगा तो तीसरा इवेंट स्टार्ट होगा। तो इस क्रम में ये G1 खत्म हुआ तो S फेज खत्म होगा तो G2 फेज, और G2 फेज खत्म होगा तो वो कमिट कर जाएगी सेल डिवीजन के लिए। तो जैसे ही डिवीजन होगा तो वो जो सेल होती है फिर से G1 में जाएगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द साइकिल, एक साइकिल के कंप्लीट होने के बाद जो सेल होती है, जैसे अभी हम डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे, साइकिल, द सेल आइदर स्टार्ट द प्रोसेसेस अगेन, या तो वो जो सेल होगी वो फिर से सेल डिवीजन के प्रोसेस के लिए फिर से वो सारी प्रक्रियाओं को स्टार्ट कर देगी, या फिर वो क्विसेंट फेज में चली जाएगी। क्विसेंटली एक ऐसे फेज में चली जाएगी जबकि वो उसका ग्रो नहीं होगा, वो सिंथेसिस नहीं होगा, उसी में रुकी रहेगी। जब फिर से उसको जरूरत होगी, सेल डिवीजन की जरूरत होगी, फिर वो G1 में फेज में जाएगी। मतलब कहने का कि आइदर विल पार्टिसिपेट इन वंस अगेन द सेल डिवीजन और एग्जिस्ट द साइकिल थ्रू G1, या फिर अपने साइकिल को G0 के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। G0 का मतलब नो गैप
गैप जीरो है, यहाँ पे सेल डिवीजन या सेल साइकिल की प्रक्रिया नहीं हो रही है। तो कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ सेंटेंसेस थे जिसके माध्यम से आपने समझा। तो अब हम इसी चीज को डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और उन सारी चीजों को बताने का प्रयास भी करेंगे जो कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी घटनाओं क्या होती हैं, इसमें कौन कौन से मटेरियल आवश्यक होते हैं, क्या बनते हैं और क्या इसके आगे होता है। तो what will the processes which are going on during to the cell cycle and the cell division? What is the substances which will form during this processes, and what is the need of the cell for that to the cell division? What is the commitment of the cell? So through this diagram we'll try to understand about what is the whole scenario of the cell cycle or the cell division, just considered about to the this is the cycle. We are just to indicating that through the this is the events. This is the following events, and these are the events. This is the events. This is the events. This time. This is events. दिस इज इवेंट। इस डायग्राम के माध्यम से, इस ग्राफ के माध्यम से हम यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे कि जो एक सेल साइकिल क्या होती है, उसमें क्या क्या बनता है। अब आप देखें, जो सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल जो होती है उसमें बेसिकली रूप से अगर हम कहें तो केवल दो इवेंट्स होते हैं। अब आप देखें, हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बताते हैं। डिफरेंशिएशन है कि सेल्स जो साइकिल है उसको हमने दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो पहला होता है इंटरफेज। तो इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, और रेस्टिंग फेज। और दूसरा होता है एम फेज मतलब माइटोसिस फेज। तो इंटरफेज की प्रक्रिया में, इंटरफेज में तीन इवेंट्स होते हैं या तीन स्टेजेस होती हैं। एक तो हमने कहा G1, एक यस फेज, एक G2 फेज। और ये यम फेज जो है वो माइटोटिक को इंडिकेट करती है, माइटोटिक डिविजन्स को इंडिकेट करती है। तो आप देखें, इस प्रकार से चार स्टेप्स इवेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पे मैंने G1, सिंथेसिस, G2 और यम फेज के रूप में इंडिकेट किया था। ठीक है, ये तो आपने जान लिया कि सेल साइकिल, विद इन अ सेल साइकिल देयर आर द particularly two types of the stages which are found. First is the interphase, or also called to the resting phase, and to the another is the yum phase, is the mitosis phase. Interphase is also consist of the three phases, is very important for that to the cell division, G1, yes and G2 phase. तो आपने अभी ये जान लिया कि इंटरफेस। तो आप देखिए, मैंने एक इसके माध्यम से ये देखिए, यहाँ से लेकर पूरा इस इवेंट तक, मतलब यहाँ ये इतने भाग को छोड़ के मैंने पूरे को दर्शाया है इस कलर से। तो ये कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कलर देखिए, हमने यहाँ पे एरो के माध्यम से इंडिकेट किया है इंटरफेस और रेस्टिंग फेज। अब आप समझिए, पहले फर्स्ट स्टेप में इंटरफेज। अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, हम आपको यहाँ बता दें, जबकि हम सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे तो सेल डिवीजन के टाइम में हम देखेंगे कि जो सेल डिवीजन होता है वो जीनिक कंट्रोल होता है। और हम आपको ये भी बता दें, जितने भी मैंने हमेशा बताया है, अभी ये इसके बाद आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो जीन के बारे में जानेंगे बेहतर तरीके से। तो जीन ही हर प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैसा कि न्यूक्लियस पढ़ाते समय मैंने बताया था
कि हेरिडिटरी और मेटाबॉलिक फंक्शनिंग के लिए जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो डीएनए और क्रोमोसोम्स पर जीन पाए जाते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। तो उसी प्रकार से जो सेल के अंदर उसका जीन है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन के लिए भी, माइटोटिक डिवीजन के लिए भी, सिंथेसिस के लिए भी। मतलब हर एक प्रक्रियाएं जीनिक कंट्रोल में होती हैं और इसीलिए ये हमेशा हर अपने टाइमिंग पे होती रहती हैं जब जैसा रिकमेंडेशन बॉडी की तरफ से होता है। मतलब बॉडी जब वांट करती है, बॉडी जस्ट वांट टू दैट अबाउट टू द व्हाट इज द काइंड्स ऑफ द प्रोसीजर विच विल वे हैपन सो दैट टू द विच अंडर कंट्रोल द जीन, वो जीन के अंदर चलता है, जीन के जेनिक कंट्रोल में होता है। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पे कहा, तो जबकि एक सेल डिवीजन हो जाए, सेल डिवीजन आप जानते हैं एक प्रोसेस वो भी है, इसके बाद हम बताएंगे, इसी के अंतर्गत आता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल विच मीन दैट टू द वन पेरेंट सेल विच आर डिवाइड into the two daughter cells which have to the same sets of the number of the chromosomes in particularly to the mitosis। तो माइटोसिस के रेफरेंस में एक प्रोसेस के अंतर्गत जो डॉटर सेल होता है, टू डॉटर सेल, और जो पेरेंट सेल होता है टू डॉटर सेल में डिवाइड होता है और सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम कंटेन करता है जैसा कि पेरेंट्स में होता है। तो ये प्रक्रिया हो रही है, ये कमिटमेंट जो है सेल तभी दिखाती है जबकि वो जीन एक्टिव होगा, और जीन कैसा होगा वो हम आगे प्रस्तुत करेंगे। तो जब सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है, जब सेल जो है डिवीजन में जाने को होती है, तो वहाँ पे माइटोटिक ट्रिगर होते हैं, बिना जीन के माइटोटिक ट्रिगर या नंबर्स ऑफ द जीन्स, group of the genes, and that is the committed for that to the which is responsible for that to the cell division। सेल डिवीजन के लिए वही जिम्मेदार होते हैं और वो जीन के माध्यम से होता है। तो एक सेल डिवीजन जब पूरा हो जाए, यहाँ से हमने देखिए यहाँ पे दिखाया है माइटोटिक फेज, यहाँ समझे इस लाइनिंग जो हमने दिखाई है यहाँ से लेके और यहाँ तक एक साइकिल, एक सेल डिवीजन पूरा होने के बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, एक सेल डिवीजन के पूरे होने के बाद एक लंबा सीक्वेंस इवेंट्स होगा और उस इवेंट को चूंकि फिर से सेल डिवीजन में जाने के लिए सेल को प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी, जैसे कि अगर हमको दोबारा कोई एक अच्छे वर्क में जाना है जबकि हम मेहनत कर चुके हैं, हार्ड वर्क कर चुके हैं, और अगर हार्ड वर्क फिर से करना है तो हम अपने आप को एक क्या करेंगे, फ्रेश करेंगे, फिर से एनर्जी को रिस्टोर करेंगे और उस काम में लगने के लिए जाएंगे। उसी प्रकार से सेल जो होती है वो सेल डिवीजन में कमिट तो जरूर होगी, लेकिन तभी होगी जबकि वो अपनी पूरी प्रिपरेशन, पूरी तैयारी कर ली होगी, मतलब रेडी फॉर दैट टू गो इन द सेल डिवीजन, वो सेल डिवीजन के लिए रेडी हो जाए। और रेडी होने के लिए उसको टाइम चाहिए, और वो जो टाइम होगा किसके बिसाइड्स सेल डिवीजन को होगा, जो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है उसके अलग होता है। तो उस अलग होने के कारण वो एक उसको क्या मिलता है, एक ऐसा फेज मिलेगा जहां पे वो कोई मतलब कि सेल डिवीजन नहीं करेगा, तो उस फेज को रेस्ट फेज बोला जाता है। किसका आधार पे, जबकि वो सेल डिवीजन में नहीं जा रहा है, विच आर नॉट पार्टिसिपेट इन टू द सेल डिवीजन, बिसाइड्स दीज आर कॉल्ड टू द इन सेल इन द रेस्टिंग फेज, एंड दैट्स रेस्ट फेज इज कॉल्ड टू द इंटरफेज। तो सेल डिवीजन की प्रक्रिया में इंटरफेज का बहुत बड़ा महत्व है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट टू द इंटरफेज। और हम आपको यहीं पे क्लियर कर दे रहे हैं कि जब आप आगे सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो सेल डिवीजन में आपको ये जानना पड़ेगा कि माइटोसिस और मियोसिस में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस होती हैं। जब ये डिवीजन होता है तो हम एक डिवीजन यहाँ पे और एक डिफरेंसेस बता देते हैं यहीं पे कि माइटोसिस और मियोसिस में डिवीजन ये है कि माइटोसिस चूंकि एक सेल से दो सेल बनाता है, तो एक डिवीजन होने के बाद इसमें इंटरफेज आना स्वाभाविक है, जेन्युइन है, नेचुरल है। लेकिन जब मियोसिस की प्रक्रिया होती है तो पूरा जब एक मियोसिस प्रोसेस हो जाता है तभी इंटरफेज आएगा, क्योंकि मियोसिस जो है वो बैक टू बैक सीरीज में दो इवेंट्स, दो सीरीज है,
मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, तो 2 सीरीज होती है। तो एक सीरीज पूरा होने के बाद जो उसमें इंटरफेज आएगा वो ऐसा इंटरफेज होगा जहां पे जो सेल होगा उसका डुप्लीकेशन, उसकी डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती है। तो इस आधार पे यहाँ पे डिफरेंसेस भी होते हैं, डिफरेंसेस आते हैं। तो हमने आपको बताया, तो इंटरफेज या उसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं। मैंने कहा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वन सेल डिवीजन दैट इज द सेल विच आर गोइंग इनटू द गैप जीरो। गैप जीरो मतलब जो रेस्ट फेज है उसमें जाती है। लेकिन यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये भी बताया था कि या तो अब कंप्लीट करते ही वो चली जाएगी जीवन में, या तो फिर जियो को रिप्रेजेंट करेगी। तो जियो क्या है, जहां पे लेफ्ट करती है, जो सेल होती है वो सेल डिवीजन से लेफ्ट करती है, उसको छोड़ के आती है, मतलब कंप्लीट करके आती है और अपने आप को प्रिपेयर करेगी, या क्विसेंट फेज में चले जाएगी। एक ऐसा पीरियड जहां पे उसका ग्रोथ अभी नहीं होगा, उस थोड़े टाइम के लिए वो रुक जाएगी। लेकिन या ऐसा भी हो सकता है कि वो सेल डिवीजन कंप्लीट होते हुए और फिर से रेडी फॉर दैट टू द नेक्स्ट सेल डिवीजन, तो वो फिर से सेल डिवीजन के लिए रेडी हो जाए और वो अगले सेल डिवीजन के लिए पार्टिसिपेट करे। तो उसके लिए इसको जीवन बोलते हैं। लेकिन इफ द सेल विच आर गोइंग इनटू द क्विसेंट फेज दैट इज कॉल्ड टू द जीओ फेज, तो जी जीरो फेज मतलब वो जीरो फेज है, क्विसेंट फेज है, उस टाइम में रहेगा। अब जबकि जीवन फेज है, तो यहां से अब आप देखें ये माइटोटिक फेज एक सेल डिवीजन के होने के बाद, यहां पे मैंने बताया कि जो भी फेज होंगे, जीवन फेज होंगे, एस फेज होंगे और G2 फेज होंगे, वहां पर देखें तो जीवन फेज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, थोड़ा यहां पे समझे। Z1 फेज बोला जा रहा है। Z का मतलब गैप है। किसके गैप? सेल डिवीजन या फिर सिंथेसिस के बीच में जो गैप आता है, रेस्टिंग फेज या इंटरफेज का ही पार्ट है। ये तीनों पार्ट G1, Gs और G2 फेज होते हैं, वो इंटरफेज के पार्ट हैं। तो ये फर्स्ट गैप फेज है। तो G1 हमेशा बोला जाता है। जब उसको और भी आप उसको एनालाइज करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, विच आर गोज टू नाउ टू द डिस्क्रिप्शन प्रोसेस, दैट इज द फर्स्ट गैप फेज। G1 दिखाया गया है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट गैप फेज है। अब आप देखिए दूसरा, इन अनदर नेम पोस्ट माइटोटिक फेज। क्यों कहा गया, वाई आर कॉल्ड टू द पोस्ट माइटोटिक फेज? बिकॉज दीज आर द इवेंट्स और द हैपनिंग और द प्रोसेसेस which done being after to the mitotic phase। माइटोटिक फेज के होने मतलब सेल डिवीजन के होने के बाद कि ये प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है या के बाद की ये प्रक्रिया है, इसलिए इसको पोस्ट मीन्स आफ्टर द माइटोटिक फेज। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, पोस्ट माइटोटिक फेज। इसीलिए इसको पोस्ट माइटोटिक फेज बोला गया, क्योंकि पहला फेज होता है, इसलिए फर्स्ट गैप फेज बोला गया। तो आपने इन नामों का जो मतलब होगा, क्यों नाम दिया गया, वाई आर टू गिवन टू द नेम, सो दैट टू द I am clarified that after the initiation, after the completion of the cell division, that to the going into the this stages. First stage after the completion of the first gap phase, and after the mitotic phase is called to the post mitotic। तो बाद के माइटोटिक फेज के बाद ये आता है, इसलिए इसका नाम है। तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन देखिए यहाँ पे हमने G0 को भी, गैप जीरो को भी रिप्रेजेंट किया है कि जबकि वो सेल डिवीजन में नहीं जा रहा है, एक क्विसेंट फेज है, एक ऐसा रेस्ट पीरियड है जहाँ पे वो सेल उसी समय बनी रहती है। अब आपको यहाँ पे इंडिकेट ये करना है हमें कि इस समय कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। आपको जानना पड़ेगा कि कौन से इवेंट, कौन से प्रोसेसेस होते हैं जो कि G1 फेज को रिप्रेजेंट करेंगे। G1 फेज, the G1 phase is represented which type of the procedure will happens, which of the procedure go now। तो यहाँ पर मुख्यतः हम आपको बता दें, पहला है तो यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ द RNA एंड प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ द RNA एंड प्रोटीन। RNA की सिंथेसिस
राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स जो कि एक सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहां तक कि जो कि नाइट्रोजनस बेस्ड डीएनए के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उसका भी निर्माण इस फेज में, देखिए यहां से लेके यहां तक जो फेज, ये पूरा फेज दिखाया जा रहा है यहां तक, ये पूरा पोस्टमार्टाटिक या जीवन फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आरएनए की सिंथेसिस, सेल जो है वो ग्रोथ होगा, उसका ग्रोथ मतलब जो है वो सबसे पहले क्या करेगी, आरएनए की सिंथेसिस करेगी, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन की सिंथेसिस करेगी और अपने आप को रेडी करेगी कि ये सेल डिवीजन की प्रक्रिया में इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए उसको ये सब सारे बना लेती हैं। और ये फिर जैसे ही आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस और इसके नाइट्रोजनस बेसिस की सिंथेसिस इस क्रम में होती है, तो चूंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और इंटरफेज का ये सबसे बड़ा जो है इवेंट्स होता है, नियर अबाउट जो 50% टाइमिंग होती है ये इसी में लग जाता है, इंटरफेज के फर्स्ट जीवन फेज में, क्योंकि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस होती है। आफ्टर दैट विच आर फॉलो टू द, अब देखिए यहाँ से लेके ये रीजन को यस फेज बोला जाता है। यस मतलब सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस किसकी होगी, सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी सेल में क्या होगा, उसका न्यूक्लियस में उसका डीएनए होता है जहां पे जीन पाया जाता है, तो डीएनए की सिंथेसिस होगी। डीएनए की क्यों सिंथेसिस होगी, क्योंकि आगे चल के उसको क्या करना है, डबल होना है, डबल डॉटर सेल, मतलब कि 2 डॉटर सेल में डिवाइड होना है, और 2 डॉटर सेल में डिवाइड होने के लिए इक्वल नंबर चाहिए, किसके, क्रोमोसोम के। तो क्रोमोसोम के इक्वल नंबर होने के लिए उसको क्या होना चाहिए, रिप्लिकेट हो रहा है, डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, डुप्लीकेशन होगा, क्रोमोसोम्स जो है वहां पे बन जाएंगे, और क्रोमोसोम अपने आप में 2 क्रोमेटिड्स को कंटेन करेगी और सेंट्रोमियर से जुड़ी रहेंगी। तो इस प्रकार से वो सिंथेसिस हो जाएगा, किसका, डीएनए की सिंथेसिस। डीएनए की सिंथेसिस के लिए रिप्रेजेंट होता है, इसलिए इसको सिंथेसिस फेज बोला जाता है। और यहाँ पे केवल और केवल सिंथेसिस होती है, किसके, फॉर दैट टू maintenance of the chromosome number which after that to the 2 daughter cell produces through the division which consists of to the same chromosome number as usual, as look like as their parent। अपने पेरेंट की तरह उसकी उन्हीं की तरह जो है क्रोमोसोम नंबर को कंटेन करने के लिए यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होती है, डुप्लीकेशन होगा, और डुप्लीकेशन होकर क्रोमोसोम फॉर्म में वो 2 क्रोमेटिड के साथ में, सेंट्रोमियर के साथ में, वहाँ प्रोटीन और आरएनए के साथ में वहाँ पे उपस्थित हो जाता है। तो ये पूरे फेज में, ये जो पूरा फेज है ये सिंथेसिस फेज कहलाता है, सबसे महत्वपूर्ण फेज है। अब इसके बाद जो सेल होती है एक बार फिर कमिट करेगी अगले स्टेप में, तो फिर देखें ये स्टेप हम दिखा रहे हैं, ये वाला, ये छोटा सा फेज फिर है। तो इसके बाद इसको बोलते हैं सेकेंड गैप फेज, G2 फेज बोलते हैं, क्योंकि क्या है, एक गैप फेज पहले आ चुका है, हाँ एक गैप फेज हो चुका है, तो एक गैप फेज होने के बाद यहाँ पे, इसलिए ये दूसरी बार एक गैप आ रहा है, इसलिए सेकेंड गैप फेज बोलते हैं। और देखिए एक दूसरे नाम के आधार पर इसको बोला जाता है प्री माइटोटिक फेज। ये क्या है, माइटोटिक डिवीजन के पहले हो रहा है ना, सेल डिवीजन के पहले हो रहा है, तो यम फेज के पहले हो रहा है, बिफोर द सेल विच गोज टू द सेल डिवीजन दैट टू पार्टिसिपेट इन द G2 फेज, so called this is pre-mitotic phase। तो इसलिए इसको प्री माइटोटिक फेज भी बोला जाता है। और ये देखिए इस समय क्या होता है, बेसिकली रूप से इसका ग्रोइंग पीरियड होगा, ग्रोथ होगा, और ये कमिटमेंट करेगी यहाँ पे जाने के लिए इस रीजन में। देखिए ये रीजन एक ऐसा, ये इसको हम बोलते हैं यम माइटोटिक फेज, और इसमें 4 फेज होते हैं, 4 इवेंट्स होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो 4 इवेंट के साथ में आफ्टर दैट टू द सेल विच आर ग्रोइंग थ्रू द G2 इवेंट, G2 प्रोसेसेस, G2 फेज के माध्यम से जब ये ग्रो करके पूरी तरीके से कमिट हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, रेडी फॉर दैट गो नाउ टू द सेल डिवीजन।
सेल डिवीजन की प्रक्रिया में, तो जो सेल डिवीजन होगी वो एम फेज होगी, माइटोटिक फेज होगी। और मैंने जैसा बताया कि जब सेल डिवीजन होता है, और आगे के लेक्चरों में हम पढ़ेंगे भी कि सेल डिवीजन में कितने फेजेस, सब फेजेस होते हैं। तो माइटोटिक बार बार बोला जा रहा है, तो यहाँ पे माइटोसिस में 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसी चारों को रिप्रेजेंट किया गया है। और इन चारों अवस्थाओं में यहाँ पे भी 2 प्रोसेसेस होते हैं। एम फेज मतलब ये जो सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन में भी 2 प्रोसेसेस होते हैं, और जो 2 प्रोसेसेस होते हैं वो होता है इसमें पहला, जो कि मैंने कहा कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, मतलब पहले जो डिवीजन होगा वो न्यूक्लियस में होगा, इसलिए इसको कैरियन में न्यूक्लियस होता है। तो उसमें मॉडिफिकेशन चेंजेस आएंगे थ्रू द प्रोटोजोआ टू प्रोफेज टू एनाफेज एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टीलोफेज ये साइटोकाइनेसिस फॉलो हो जाएगी। और तो साइटोकाइनेसिस में सेल का पूरा डिवीजन होता है, सेल पूरी तरीके से डिवाइड होके साइटोप्लाज्म में, along with the cytoplasm, that is the cell which are go now into the division completely or entirely, and to the each of the organelles and the cytoplasm as well, along with the along with the same number of the chromosome which consist about to the 2 daughter cells। तो वो सेल जो है वो चली जाएंगी। तो यहाँ पे यम फेज में आप देखेंगे कैरियोकाइनेसिस, सेल न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस जो है सेल का डिवीजन, पूरी तरीके से कंप्लीट होके डिवाइड हो जाएंगी। और डिवाइड होने के बाद जो है इस प्रकार से डिवीजन की प्रक्रिया में चली जाएंगी, और डिवाइड होके पूरी तरीके से कमिटमेंट के साथ में पूरी जो प्रक्रिया है वो हो जाएगी, और ये सेल डिवीजन हो जाएगा। और फिर से वो सेल या तो G1 फेज के लिए या G2 फेज के लिए कमिट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि जो सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है, सिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, यहाँ पे GS फेज की बात आई है, और सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है। तो खासकर माइटोसिस की प्रक्रिया के लिए वहाँ पे जीन्स होते हैं, जिस जीन के माध्यम से वो प्रोसीजर होता है वो उसको ग्रुप ऑफ द जीन्स विच आर प्रेजेंट फॉर दैट टू द completion of to the cell division, process of the cell division, that is called to the mitotic trigger। तो यहीं पे अगर सेल जो है वो ज़्यादा एक्टिविटी करने लगता है, सेल की डिवीजन को ज़्यादा से ज़्यादा करवाता है, तो वो कैंसर में मॉडिफाइड हो जाता है। अगर सेल जो है G1 फेज में ही रुक जाता है तो सेल डिवीजन की प्रक्रिया नहीं हो पाती, वो सेल थ्रू आउट द लाइफ जो होता है वो डिवाइड नहीं होती। और ये प्रॉपर कन्वीनियंट रूप से अगर सेल वो जो है जीन के माध्यम से अगर वो रिकॉग्नाइज की है, वो उसको प्रोसीड कर रहा है, तो वो लगातार सीक्वेंस में सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता हुआ और 2 डॉटर सेल में डिवाइड करता हुआ पूरे सीक्वेंस के साथ में, पूरे डिवीजन के साथ में, पूरे इवेंट के साथ में और पूरे ऑर्गेनल के साथ में डिवाइड होके 2 डॉटर सेल उसी सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम जैसा पेरेंट माइटोसिस या जिसको माइटोटिक डिवीजन या सोमैटिक डिवीजन बोलते हैं, उसमें ही सबसे बड़ी क्वालिटी, सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो सेम ऑफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम जैसा पेरेंट्स में होता है उसी प्रकार से डॉटर में कंटेन करता है। तो इस प्रकार से पूरी तरीके से आपने देखा कि सेल डिवीजन होने के लिए सेल साइकिल का होना, मतलब उसमें जितने भी इवेंट्स होते हैं, मतलब आरएनए की सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस, डीएनए की सिंथेसिस, उसके फुल ग्रोथ की संभावनाएं, सारे जब घटनाएं, जब इवेंट्स पूरी तरीके से हो जाते हैं तभी ये कमिट होती है सेल डिवीजन के लिए, तब जाके कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होगी और फिर ये 2 डॉटर सेल में अपने सेम क्रोमोसोम के साथ में डिवाइड हो जाएगी और फिर से सेल डिवीजन के लिए कमिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में आपने सेल डिवीजन से पहले उसके जो पूरे प्रोसेसेस को देखा। अगले लेक्चर में हम माइटोसिस एज ए सेल डिवीजन के रूप में आप प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।